Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your GK teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your GK class. My dear students, we are on unit number 13. The name of our unit is Things Around Us. And we are on lecture number 6, and in this lecture we are going to make a project number 1. So मैं आपको बताऊंगी ये project आपने कैसे करना है. I will help you out, but before that let's quickly recap what we did in the previous lecture. So in the previous lecture हमने plants के बारे में differentiate किया था. So look at these pictures very carefully and then tell me how both plants are different. दोनों जो है plants एक दूसरे से कैसे different है. Pause the video and quickly find out the difference between the two. Very good. So पहला difference क्या है? The first plant, the date palm tree is extremely big, whereas the rose plant is small. Next is this has flowers. This does not have flowers on it. Number third is the stem of rose plant is thin and green, whereas the stem of date palm tree is thick and woody. So these are the differences between the two. Okay, my dear students, now let's quickly move forward towards the student learning outcome for today. So आज के project में जो SLO under discussion होगा project बनाते हुए वो क्या कौन सा होगा? That students will be able to recognize the differences between the plants they see around them. So बच्चे जो है already पढ़ चुके हैं differences plants के दरमियान में. आज हम project के through जो है बच्चों को recognition जो है वो अच्छे तरीके से करा देंगे. So my dear students, let's quickly look at the Islamic perspective. So Allah says in Quran, He it is who spread the earth for you and made in it paths for you and sent down water from the sky, and then through it we brought forth many species of diverse plants. So plants की डाइवर्सिटी के बारे में ही इस आयत में बताया गया है कि कैसे जो है वो प्लांट्स ग्रो करते हैं पानी से और जो है वो एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा मुख्तलिफ होते हैं. So my dear students, now is the time for pre-reading question. Quickly tell me that do you visit to a garden with your parents? क्या आप कभी गार्डन जाते हैं अपने पेरेंट्स के साथ? वेरी गुड. अगर आप जाते हैं और अगर नहीं जाते तो आज आपको जाना पड़ेगा. ठीक है. What are the different plants that you see in the garden? So अगर आप गार्डन जाते हैं तो वहां आपको different plants कौन कौन से देखने को मिलते हैं? जैसे कि अगर मैं गार्डन जाऊं, आई ऑफन गो टू गार्डन. मेरे घर के पास एक जॉगिंग ट्रैक बना हुआ है और वहाँ काफ़ी बड़ा गार्डन है. तो वहाँ जो है मुझे काफ़ी तरह के पौधे देखने को मिलते हैं. सम आर वेरी ह्यूज ट्रीज और कुछ के ऊपर जो है वो फल भी लगते हैं. जैसे कि वहाँ पे कुछ आई सी अ फ्यू मैंगो ट्रीज ओवर देयर. इसके अलावा कुछ पौधे छोटे छोटे लगे हुए हैं फूलों के. जैस्मिन लगे हुए हैं, रोज प्लांट्स लगे हुए हैं. सो दीज आर द डिफरेंट प्लांट्स दैट आई सी इन दैट गार्डन. So my dear students, okay, now is the time for the reading. Reading में आज project हम बनाएंगे given on page number 111, project number 1. Quickly open it in your books. I hope everybody has opened the books and the page 111. So project number 1. पहले देख लेते हैं कि project number 1 में क्या हमें instructions दी गई हैं, तब मैं आपको clearly इनको explain करती हूँ. So visit a garden nearby your house. आपने एक garden को visit करना है आज, okay? Then number A, observe the plants over there for the features given in the table. So इसी प्रोजेक्ट के साथ नीचे आपको एक टेबल भी दिया गया है. आपने सबसे पहले जितने भी फीचर्स वहां दिए गए हैं आप अपनी बुक साथ ले जाइएगा, या अगर आप इस टेबल को पूरा नहीं आपका वहां आता बुक के ऊपर काम तो आप इसको बुक कॉपी पे भी बना सकते हैं. बट इट कैन इजीली बी डन ऑन द बुक. आपने अपनी बुक गार्डन अपने साथ लेके जानी है और वहां जो डिफरेंट फीचर्स इसके ऊपर लिखे हुए हैं, बिग स्मॉल, आपने उन फीचर्स को गौर से पढ़ना है. और जो डिफरेंट पौधे फिर आपको नजर आ रहे हैं, देन शेयर योर ऑब्जर्वेशन विद द क्लास नेक्स्ट डे. आपने जो डिफरेंट फीचर्स वहां आपको नजर आ रहे हैं टेबल के अंदर, आपने उनको ऑब्जर्व करना है अपने इर्द गिर्द. जैसे कि आपने प्लांट्स के नेम लिख लें. फॉर एग्जाम्पल रोज, मैंगो ट्री, नीम. ये दरख्त बहुत कैजुअली आपको नजर आ जाते हैं. ठीक है. अब आपने बताना है कि ये बिग है या स्मॉल है. सो रोज इज स्मॉल. आई विल राइट हियर स्मॉल. देन लीव्स इसके बिग होते हैं या स्मॉल होते हैं? दे आर स्मॉल. देन डज इट हैज फ्लावर्स, प्रेजेंट और एब्सेंट? आई विल राइट प्रेजेंट क्योंकि इस पे फ्लावर्स लगे हुए होते हैं. सो स्टेम इसका थिक है या थिन? इट इज थिन. देन द स्टेम कलर इज ग्रीन. So this is how you will complete this
प्रोजेक्ट। तो इस तरीके से आपकी ऑब्जर्वेशन और रिकग्निशन जो है वो बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। आप प्रैक्टिकली जो है वो प्लांट्स को देखकर ऑब्जर्व करेंगे और उनके दरमियान आप डिफरेंशिएट कर सकेंगे। ओके, सो दिस इज हाउ यू विल कंप्लीट इट। सो आपने इनके लीव्स, जो भी प्लांट्स आपने जिनके बारे में यहां ऑब्जर्व किया है, आपने उनके लीव्स जो है वो कलेक्ट करने हैं और फिर उनको पेस्ट द लीव्स ऑफ डिफरेंट शेप्स इन योर स्क्रैप बुक। आपने जो लीव्स है उनको ड्रॉ करना है शेप्स को अपनी स्क्रैप बुक में या अपनी साइंस कॉपी में। सो दिस इज योर होमवर्क। ये मैं आपको होमवर्क में आपका प्रोजेक्ट दूंगी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, evaluation, which features in plants are different that you see in garden। अब आप जब गार्डन जाएंगे तो जो डिफरेंट फीचर्स आप वहां देखेंगे प्लांट्स के, वो कैसे जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट थे। टॉल, स्मॉल, big leaves, small leaves, flowers, no flowers. So this is how you will differentiate them. Okay. The next is practice. For practice, you will download this worksheet from the description box below this video, or you can get it in print form by your teacher. So my dear students, write down your name and your class and then things around us. Again, हम वही कर रहे हैं. Identify features by which following plants are different and write the name of the plant in respective column. ठीक है? यहाँ आपको कुछ pictures दी गई हैं. Date tree, rose plant, aloe vera, coconut tree. So 1, 2, 3, 4, 4 plants हैं. So number 1 plant is date palm. Okay. So is it big or small? आपने इसको टिक कर देना है. This is sorry, extremely sorry. आप इसको कैसे कंप्लीट करेंगे मैं आपको बताती हूं. आपने यहां लिखना है डेट पाम, डेट ट्री. ठीक है, इट इज बिग बिकॉज. उसके बाद नंबर 2 इज रोज. सो रोज इज स्मॉल, सो आप यहां लिख देंगे रोज. ठीक है, तो इस तरीके से आपने इस वर्कशीट को कंप्लीट करना है. सो दिस इज योर होमवर्क. दैट वाजंट योर होमवर्क, ये आप क्लास वर्क में अपने कंप्लीट करेंगे वर्कशीट. सो माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ इज द टाइम फॉर होमवर्क. सो होमवर्क में आपने प्रोजेक्ट नंबर 1 को कंप्लीट करना है. कैसे कंप्लीट करना है मैंने आपको पूरा तरीका बताया है. आपने टेबल जो है अपनी बुक को साथ लेके जाना है और जो उसमें गिवन कॉलम्स हैं उनके अंदर फीचर्स को पढ़ के, प्लांट्स के नेम्स लिख के और फिर आपने आगे उसके लिखना है कि whether the leaves were small, the stem was thick or thin, color क्या था stem का. So this is how you will complete the homework. Okay, my dear students, now is the time for wrap up. So today we have learned that plants are different in height, stem, flowers, leaves and growing places. So my dear students, I hope you will thoroughly enjoy this activity while doing it. Garden जरूर जाइएगा, जरूर इसको complete कीजिएगा. You will love doing it. Thank you so much and Allah Hafiz.